پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کراچی سے لاہور کے لیے ایئر سیال سے سفر کیا ہے۔ اندرون ملک سفر کے لیے ایئر سیال کا انتخاب کرنے پر کمپنی نے بلاول بھٹو کا شکریہ ادا کیا ہے۔ نجی فضائی کمپنی کی جانب سے بلاول بھٹو کو ان کے طیارے میں سفر کرنے پر گلدستہ بھی پیش کیا گیا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اندرون ملک سفر کرنے کے لیے ایئر سیال کا انتخاب کرنے پر بلاول بھٹو کے شکر گزار ہیں۔ بلاول بھٹو دوبارہ بھی سفر کریں گے تو انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ جامعہ کراچی میں تدریسی عمل چوتھے روز بھی فعال نہ ہو سکا۔ انجمن اساتذہ کا کلاسز کا بائیکاٹ جاری ہے۔ سندھ کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ کراچی میں طلبہ چوتھے روز بھی تعلیم سے محروم۔ انجمن اساتذہ کا بائیکاٹ جاری، جامعہ میں چوتھے روز بھی کلاسز فعال نہ ہو سکی۔ شام میں ہونے والے پرچے بھی ملتوی کر دیے گئے۔ غیر تدریسی عملہ بھی اساتذہ کے ساتھ ہو گیا۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے کلاسز کا بائیکاٹ جاری رہے گا۔ مطالبہ یہ ہے کہ جب تک کہ جو ہے سیکریٹری یونیورسٹی اینڈ بورڈ کو برطرف نہیں کیا جاتا، اس کی جگہ ایسا سیکریٹری یونیورسٹی اینڈ بورڈ نہیں لگایا جاتا جو کہ یونیورسٹی کے ایکٹ سے واقف ہو، یہ اشتعال جاری رہے گا، اسٹرائک جاری رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آفیشلز کو جو یہ کہتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی ہم سے پوچھ کے چلائی جائے، پرمیشن چلائی جائے، ان کو بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ آج تک ایک رابطہ نہیں کیا گیا ہے۔ آپ لیٹر نکال کے اگر رول کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہوگا یہ۔ جی ہمارے کچھ مطالبات ہیں اور ان مطالبات کے جو پورے نہ ہونے تک ہم جو ہے تدریسی عمل معطل رکھا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس کا جو کلاسز نہیں ہو رہی ہیں، نقصان ہو رہا ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن بہرحال اپنی جگہ تو میں سمجھتا ہوں جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں انہیں ایک سلوشن کی طرف جانا چاہیے۔ جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے، مثلا ایک ہمارے پاس کوئی وائس چانسلر آنا چاہیے، ایک رولنگ آ گئی ہے، سینئر موسٹ پروفیسر ہونا چاہیے، تو جا کے یونیورسٹی کے معاملات چلتے رہیں۔ اساتذہ کے بائیکاٹ کی وجہ سے طالب علموں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ حصول علم کی تلاش میں نکلے طالب علم مایوسی کے ساتھ گھر واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ تاہم بروز منگل کو ہونے والے اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ محکمہ اسکول تعلیمی افسران کے تقرر تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ افسر ملیر عابد شاہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ غلام کھٹیانی ڈسٹرکٹ آفیسر ایلیمنٹری سیکنڈری ملیر تعینات کر دیے گئے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ افسر ایلیمنٹری سیکنڈری قربان علی راہو کو تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں آزاد نہڑیو سے۔ آزاد، آگاہ کیجیے گا، تبادلے کر دیے گئے ہیں، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی، سندھ سرکار نے محکمہ اسکول تعلیم میں کراچی کے ضلع ملیر سمیت مختلف اضلاع کے مقامی سطح پر افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے، جس کا باضابطہ طور پر محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے محکمہ اسکول تعلیم کی سفارش پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈسٹرکٹ افسر ایلیمنٹری ملیر عابد علی شاہ کو عہدے سے ہٹا کر وہاں پر غلام کھٹیانی کو ڈسٹرکٹ افسر ایلیمنٹری سیکنڈری ملیر تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ایلیمنٹری سیکنڈری قربان علی راہو جو شہید بے نظیر آباد میں تعینات ہے، ان کا تبادلہ کر کے ان کو ڈسٹرکٹ آفیسر ایلیمنٹری سیکنڈری شہید بے نظیر آباد تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاندھی تالپور کو ضلع تعلیم افسر پرائمری ضلع جام شورو تعینات ہے، ان کا تبادلہ کر کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ایلیمنٹری سیکنڈری ہائر سیکنڈری ضلع جام شورو محمد قاسم شورو کا بھی تبادلہ کیا گیا ہے۔ محمد قاسم شورو کو ضلع ایلیمنٹری افسر سیکنڈری ہائر سیکنڈری ضلع جام شورو تعینات کیا گیا ہے۔ شمسین دوٹ جو ڈپٹی ڈائریکٹر اسکول ایلیمنٹری ان کو سیکنڈری مرپوگا تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر پرائمری کشمور محمد عارف کا بیربل کا تبادلہ کر کے ان کو ضلع آفیسر ایلیمنٹری سیکنڈری کشمور کندکوٹ تعینات کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے سندھ کے 15 سے زائد ایسے اضلاع ہیں جہاں کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر کا تبادلہ کر کے انہیں ضلعوں میں ضلع تعلیمی آفیسر کے عہدوں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا آزاد نہڑیو۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ترسیلات زر کے فروغ کے لیے اسکیم کا اعلان کر دیا ہے۔ ایکسچینج کمپنیوں کو ہر ڈالر پاکستان لانے پر ₹1 ملے گا۔ جنرل سیکرٹری فاریکس ایکسچینج ایسوسی ایشن ظفر پراچوہ نے اقدام کو خوشائند قرار دے دیا ہے۔ بینک نے ترسیلات زر کے فروغ کے لیے اسکیم کا آغاز کر دیا۔ ایکسچینج کمپنیوں کو $1 پاکستان لانے پر ₹1 ملے گا۔ اسکیم کا اطلاق آج سے کر دیا گیا۔ جنرل سیکرٹری فاریکس ایکسچینج ایسوسی ایشن ظفر پراچوہ نے اسٹیٹ بینک کے اقدامات کو خوشائند قرار دے دیا۔ کہا کہ ترسیلات زر میں اضافہ ہوگا۔ اگر بینکوں کی طرح ایکسچینج کمپنیوں کو سہولیات دی جائیں تو آئندہ کچھ ماہ میں ترسیلات زر اور زر مبادلہ ملک میں بلند ترین سطح پر پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے بینکوں کو انسینٹیو دیے جا رہے ہیں
अगर हमको भी उसी के अंदर शामिल कर दें तो इससे हमारी जो एक्सचेंज कंपनीज रेमिटेंस ला रही हैं तो मैं गवर्नर साहब को यकीन दिलाता हूं कि वो इंशाल्लाह डबल हो जाएंगी। अगर हमको बैंकों के अंदर और PRI की स्कीम में डाल दें तो हम जो भी 100-150 मनी ट्रांसफ़र कंपनीज हैं उनके अंदर हमको दे दें तो ये इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो हमारा हिस्सा है, जो 5-6 बिलियन डॉलर हम ला रहे हैं, वो तो 1 साल में डबल हो जाएगा और जो टोटल रेमिटेंसेज हैं वो भी मैं यकीन दिलाता हूँ 3 साल में डबल हो जाएंगी। स्टेट बैंक स्कीम में शामिल होने के लिए कंपनियों को 100% तरसीलात इंटरबैंक को फराहम करना होंगी, जिसके लिए कंपनियों को अलहदा फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाना होगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। नेशनल सेविंग पर शरह मुनाफा में कमी कर दी गई है। बहबूद और पेंशनर सर्टिफिकेट पर 72 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी गई है। बहबूद और पेंशनर सर्टिफिकेट होल्डर्स को 12.42% मुनाफा हासिल होगा, जबकि सेविंग अकाउंट होल्डर्स के शरह मुनाफा में 1% इजाफे से 8.25% इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा में कमी कर दी है। नए पॉलिसी के मुताबिक बहबूद और पेंशनर सर्टिफिकेट पर 72 बेसिस पॉइंट्स कमी कर दी गई है। 1 लाख रुपए पर 1020 रुपये का मुनाफा हासिल होगा, जबकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 48 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया गया है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में नुमायां कमी आ चुकी है। डॉलर एक ही दिन में 1 रुपये 4 पैसे सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 50 पैसे कमी। फॉरेक्स ट्रेडर्स ने डॉलर की कदर में मजीद कमी का इम्कान जाहिर कर दिया है। एक्सचेंज मार्केट में डॉलर की कदर में कमी आ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 4 पैसे सस्ता होकर 174 रुपये 48 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे कमी से 177 रुपये का हो गया। जनरल सेक्रेटरी फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन जफर पराचा का कहना है कि IMF से मंजूरी के नताइज आना शुरू हो गए हैं। डॉलर की हकीकी कीमत 165 रुपये तक बनती है। माशी आदाद शुमार अच्छे रहे तो डॉलर की कदर में मजीद कमी आएगी, क्योंकि रुपया ऑलरेडी अंडर वैल्यू है और डॉलर ओवर वैल्यू है। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा, जैसे कि हमारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स जितने भी हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो डॉलर मैं समझता हूँ 165 रुपये पे आ जाना चाहिए। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये महंगा होकर 201 रुपये का हो गया। बरतानवी पाउंड 241 पर बरकरार रहा। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ हबीब खान, सिटी 21। स्टेट बैंक ने फौरी अदायगियों के निज़ाम रास्त में फ़र्द ता फ़र्द अदायगी मुतारिफ करवा दी है। सारिफीन अपने मोबाइल फ़ोन नंबर को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करके रकम भेज और मंगवा सकते हैं। सारिफीन अपने इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर या अपने रास्त शनाख्त के ज़रिए किसी भी अकाउंट के साथ लेन देन कर सकेंगे। सारिफीन का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही इनकी रास्त शनाख्त है। रास्त सिस्टम के ज़रिए रकम 20 सेकंड्स में भेजी जा सकेगी और फ़ंड ट्रांसफ़र के कोई चार्जेस भी नहीं होंगे। बैंकों को हिदायत की गई है कि वो सारिफ की साख के मुताबिक अदायगी की ज़्यादा से ज़्यादा हद मुकर्रर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हद 2 लाख रुपए से कम ना हो, जबकि कम अज़ कम अदायगी की भी कोई हद मुकर्रर ना करने की हिदायत की गई है। हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा इम्पोर्टेड गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी और 17% सेल्स टैक्स आयद कर दिया है, जिससे गाड़ियों के कारोबार से मुंसलिक ताजिर परेशानी का शिकार हैं। इस्तेमाल शुदा इम्पोर्टेड गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी और 17% सेल्स टैक्स आयद। गाड़ियों के कारोबार से वाबस्ता ताजिर परेशानी का शिकार। मकामी सतह पर बनने वाली गाड़ियों की कीमतों में इजाफे ने तो वैसे ही नई गाड़ी आम आदमी की पहुंच से दूर कर दी। आल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद कहते हैं, हुकूमत को चाहिए कि 3 साल पुरानी गाड़ी से बढ़ाकर 5 साल पुरानी गाड़ी लाने की इजाज़त दे। देखें, हम हुकूमत से 2 चीज़ों की जो डिमांड कर रहे हैं, बल्कि अपील कर रहे हैं कि एक तो जो यूज़ कार 3 साल पुरानी आ रही है उसको 5 साल कर दिया जाए। उससे होगा ये कि जापान में 5 साल पुरानी गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं और उससे हुकूमत को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि जो ये गाड़ियाँ आ रही हैं ये डॉलर ड्यूटी बाहर से ला रही हैं। कार शोरूम डीलर मुदस्सिर ने शिकवा किया कि कारोबार तबाह हो गया है, मार्केट में कस्टमर ही नहीं। 660 सीसी गाड़ी है, वो भी एक आम आदमी की रेंज से बाहर चली गई है, तो प्राइसेस इतना हाई होने की वजह से डेफिनेटली हमारे काम पे ही इम्पैक्ट आ रहा है। मतलब हम लोग बैठे हुए हैं सारा दिन, पहले जो है वो काम की नौयत और थी, अभी ये सेल टैक्स और ये ड्यूटियां बढ़ाने की वजह से मार्केट में कस्टमर ही नहीं है। सेल्स टैक्स और FED लगने से इम्पोर्टेड इस्तेमाल शुदा 660 सीसी 17 से बढ़ाकर 21 लाख और 1000 सीसी गाड़ी 22 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक पहुँच गई है। कैमरामैन के साथ अयाज राना, सिटी 21।
रवा साल जनवरी में गुज़श्ता माली साल जनवरी के मुकाबले में बरामदात में 18.7% का इजाफा हुआ। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि रवा साल जनवरी में 2 अरब 54 करोड़ 60 लाख डॉलर की बरामदात हुई हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के बयान के मुताबिक गुज़श्ता माली साल जनवरी में 2 अरब 14 करोड़ 50 लाख डॉलर की बरामदात थीं। रवा माली साल के पहले 7 माह में बरामदात में 24% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवा माली साल अब तक 17 अरब 67 करोड़ 10 लाख डॉलर की बरामदात हुई। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में 14 अरब 25 करोड़ 50 लाख डॉलर बरामदात हुई थी। उन्होंने इतराफ़ किया कि माहाना बुनियादों पर बरामदात में कमी का रुझान भी नज़र आ रहा है। मुशीर तिजारत का कहना है कि दिसंबर 2021 के मुकाबले में जनवरी 2022 में दरामदात में 22% कमी हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ मिला जुला रुझान देखा गया है। 100 इंडेक्स में सिर्फ 42 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत आगाज के बाद दिन भर मार्केट में मुनाफे के हसूल के लिए सरमाया का सरगर्म नजर आए। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स के 46 पॉइंट के इजाफे से 45,909 की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से मार्केट में प्रेशर है। टेक्निकली मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहे थे 46,300 पे, तो न्यूज़ आने के बाद लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की। जिन्होंने निचले लेवल से बाइंग की हुई थी 46,300 पे हमने मार्केट में एक सेलिंग देखी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट में मिला जुला रुझान है। आज भी मार्केट में सारा दिन मिला जुला रुझान ही रहा है। स्टॉक मार्केट में आज 373 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें से 169 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 189 कंपनियों की कीमतों में कमी देखी गई, जबकि 8.8 अरब रुपए मालियत के 19.2 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। कैमरामैन अहमद अब्बास के हमरा अयाज वाना, सिटी 21। नादरा कवानीन यतीम तालिब इल्म के हुसूल इल्म में रुकावट बन गए। शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए वालिद या वालिदा को लाने की शर्त पर तालिब इल्म रुल गया। 6 माह का था, मेरी वालिदा मुझे छोड़ के चली गई थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मैं फिर बड़ा हुआ, मुझे पाला मेरे दादा दादी ने, चाचा ने पाला। मेरा वालिद नशा करते थे, ज़ाहिर है उनको कोई खबर ही नहीं होती थी किसी चीज़ की। फिर 2008 में उनका भी इंतकाल हो गया, फिर मैं बिल्कुल यतीम हो गया। फिर चाचा ने पाला, मेरी पढ़ाई जारी रही, पढ़ाई करता रहा। जब मैंने इंटर कर लिया, इंटर करने के बाद जब मैं आगे गया हूँ यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन लेने, उन्होंने मुझसे बोला कि आपको NIC चाहिए, NIC लेकर आओ। और NIC मेरे पास था नहीं। नादरा वाले यही कहते हैं अपने वालिद वालिदा का NIC लाओ। मैं वालिद वालिदा नहीं है तो मैं उनका NIC कहाँ से लाऊँ। मैं तो छोटा था, वालिदा तो बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। तालीम ज़ाया हो गई, मैं इंटर किया हुआ है, मेरे 4 साल ज़ाया हो गए। अब तक तो मैं काफ़ी आगे तक पढ़ चुका होता। यही चाहता हूँ कि मेरा NIC जल्द से जल्द बन जाए। आज कैंसर से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गरीब और तरक्की पजीर ममालिक में 70% अमवात कैंसर के बायस होती हैं। सिर्फ पाकिस्तान में गुज़श्ता साल 1,78,000 से ज़ायद अफराद मूजी मरज़ में मुब्तला हुए, जो ख़ुद को, अपने प्यारों और दुनिया को इस मोहलिक और जानलेवा मरज़ से बचाने और कैंसर के ख़ात्मे के लिए हर सतह पर हमें अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कामयाब ज़बान स्पोर्ट्स ड्राइव के तहत ग्लोबल स्कोको वेंचर की मुआवनत से फुटबॉल ट्रायल्स का इस्लामाबाद से शुरू होने वाला सिलसिला कराची में इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया है। ग्लोबल स्कोर वेंचर के तहत इस्लामाबाद से शुरू होने वाले फुटबॉल ट्रायल का सिलसिला पेशावर, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, सक्खर और कोयटा से होता हुआ कराची पहुंच चुका है। कराची में मुनक़दा ट्रायल में नौजवान फुटबॉलर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुंतखब होने के लिए अपनी भरपूर सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। आयरलैंड के मारूफ फुटबॉलर ब्रायन केयर ने अपनी एकेडमी के डायरेक्टर जेर और ब्रायन के हमरा नौजवान की कारकर्दगी का जायजा लिया। कोचेस का कहना था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में बेपनाह टैलेंट है, उन्हें निखारने की ज़रूरत है। The children, young players, boys and girls need to be given the opportunity to play, and they need good coaches to improve them and to show them where they have to improve the game. GSV के डायरेक्टर ऑपरेशन अरसलान मुश्ताक ने बताया कि सेंट पैट्रिक फुटबॉल क्लब से लाइसेंस याफ्ता कोचिंग स्टाफ की ज़ेरे निगरानी 5 फरवरी को फाइनल मुकाबले होंगे। जो लास्ट स्टेशन है वो कराची है, जहाँ पे हम मौजूद हैं, जहाँ पे भी 620 से ऊपर बच्चों ने जो है ट्रायल्स में शिरकत की। और अब 5 तारीख से 8 तारीख तक हमारा फाइनल राउंड होगा, जहाँ यहाँ पे कराची में ही, जिसमें हम 100 बच्चों को गैदर कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान। इस दौरान मुंतखब होने वाले 20 खिलाड़ियों को आयरलैंड के शहर डबलिन भेजा जाएगा, जहाँ उन्हें सेंट पैट्रिक फुटबॉल क्लब के साथ ट्रेनिंग का मौका दिया जाएगा। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। खबरें अपने जाने इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।